رمضان کا مہینہ آیا تو شہر کی فضا میں ایک خاص سکون اور خوشبو سی محسوس ہونے لگی۔ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے چراغ جلائے گئے تھے، مساجد کی مینار سحر اور افطار کے وقت اپنے میناروں کی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ ہر چہرے پر ایک امید اور ایک محبت کی جھلک تھی۔ شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک لڑکا، علی، 12 سال کا، رمضان کی آمد سے بے حد خوش تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے ہی رمضان کے لیے ایک الگ سا جوش تھا، لیکن اس سال کچھ زیادہ ہی مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ علی کے والد، جو ایک استاد تھے، اسے رمضان کے حقیقی مقصد کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ علی، رمضان صرف روزہ رکھنا نہیں، بلکہ اپنے دل کو صاف کرنے، دوسروں کی مدد کرنے اور اللہ کے قریب جانے کا مہینہ ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رمضان کو یادگار بنائے گا۔ وہ روزانہ سحری کے وقت اٹھتا، ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے تیار ہوتا اور اپنے والد کے ساتھ نماز فجر ادا کرتا۔ سحر کے وقت علی کو چپ چاپ شہر کی خاموشی میں ایک سکون محسوس ہوتا، جیسے ہر چیز اللہ کی قدرت کی ایک جھلک دکھا رہی ہو۔ روزہ رکھنا علی کے لیے پہلے تھوڑا مشکل تھا، خاص طور پر گرمی کے دنوں میں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ اس کے والد نے اسے سمجھایا، علی، جب تم بھوکے رہو تو سمجھو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ روزہ تمہیں شکر گزاری اور صبر سکھاتا ہے۔ ایک دن علی نے اپنی ماں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ رمضان میں غریب بچوں کی مدد کرے گا۔ وہ محلے کے دکانداروں سے چھوٹے چھوٹے سامان جمع کر کے ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے لگا۔ علی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب اس نے دیکھا کہ کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے پہلی بار واقعی احساس ہوا کہ رمضان کے اصل خوشی دوسروں کی خوشیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ شام کے وقت جب اذان ہوتی، پورا محلہ افطار کے لیے تیار ہوتا۔ علی کے والد نے اسے بتایا کہ افطار کا وقت ایک خوشی کا لمحہ ہے اور اسی میں محبت اور بھائی چارہ چھپا ہوا ہے۔ علی اپنے والد کے ساتھ افطار کی تیاری میں ہاتھ بٹاتا، کھانے کو سجانے اور پانی و کھجور بٹانے میں مصروف رہتا۔ رمضان کے مہینے میں علی کی سب سے پسندیدہ چیز تراویح کی نماز تھی۔ رات کے وقت مسجد کی جانب چلنا اور وہاں ایک جماعت میں اللہ کی حمد و ثنا کرنا اسے بہت خوشی دیتا۔ علی نے محسوس کیا کہ مسجد کی روشنی، لوگوں کی یکجہتی اور اذان کی گونج ایک روحانی سکون لے کر آتی ہے جو دن کے عام شور میں نہیں ملتی۔ ایک دن علی کے والد نے اسے رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت بتائی۔ علی، یہ عشرہ خاص ہے، اس میں شب قدر ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات دعا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ علی نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ شب قدر میں پوری دلجمی سے دعا کرے گا، اپنے والدین، بھائی بہن اور سب لوگوں کے لیے۔ رمضان کے دوران علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ نیک کام کیے۔ وہ پانی کی بوتلیں، کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے غریب بچوں میں تقسیم کرتے۔ ہر کام کے بعد علی کے دل میں ایک اندرونی خوشی محسوس ہوتی اور وہ جانتا تھا کہ یہ خوشی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آہستہ آہستہ رمضان کے دن گزرنے لگے۔ علی نے نہ صرف روزہ رکھنا سیکھا بلکہ شکر گزاری، صبر اور دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت بھی سمجھ لی۔ اسے احساس ہوا کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، بلکہ ایک موقع ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے، دل کو صاف کرنے اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا۔ رمضان کے آخری دن علی اور اس کے خاندان نے ایک ساتھ دعا کی، افطار کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ علی نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ سال بھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا رہے گا اور رمضان کی روح کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھے گا۔ رمضان ختم ہوا، لیکن علی کے دل میں اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ اس نے جان لیا کہ رمضان کی اصل برکت صرف کھانے پینے کا نہیں، بلکہ دل کی صفائی، اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت میں چھپی ہوئی ہے۔ رمضان ختم ہونے کے بعد شہر کی فضا آہستہ آہستہ اپنی پرانی رفتار پر واپس آنے لگی، مگر علی کے دل میں کچھ بدل چکا تھا۔ وہی گلیاں، وہی گھر، وہی لوگ تھے، لیکن علی کی نظر میں سب کچھ نیا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے رمضان نے اس کے دل میں ایک چراغ جلا دیا ہو جو اب کبھی بجھنے والا نہیں تھا۔
ईद का दिन आया तो पूरा शहर खुशियों से भर गया। सुबह सवेरे अली नए कपड़े पहनकर अपने वालिद के साथ ईदगाह गया। वहां हजारों लोग एक साथ खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। जब सब ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद मुबारक कहा तो अली को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। ये खुशी सिर्फ नए कपड़ों और मीठी चीजों की नहीं थी, बल्कि ये खुशी दिल की थी। नमाज के बाद अली अपने वालिद के साथ घर वापस आया। इसकी मां ने मीठी सेवैयां तैयार की थीं। घर में खुशबू फैली हुई थी और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। अली ने सेवैयां खाएं, मगर उसके जहन में एक ख्याल आया। इसे वो गरीब बच्चे याद आए जिनके साथ इसने रमजान में मदद की थी। अली ने अपने वालिद से कहा, अबू, क्या हम आज भी उन बच्चों के पास जा सकते हैं? शायद उनके पास ईद की खुशियां कम हों। इसके वालिद मुस्कराए और बोले, बेटा, यही तो रमजान का असल सबक है कि हम सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि हर दिन दूसरों की मदद करें। अली ने फौरन अपने कुछ पुराने मगर साफ और अच्छे कपड़े निकाले और अपनी ईदी में मिले कुछ पैसे भी साथ रखे। वो अपने वालिद के साथ उन बच्चों के पास गया। जब इसने इन बच्चों को कपड़े और पैसे दिए तो उनके चेहरों पर खुशी की चमक आ गई। एक छोटे बच्चे ने अली को गले लगा लिया और कहा, भाई, आज मेरी भी ईद बन गई। ये सुनकर अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस लम्हे इसे महसूस हुआ कि असल खुशी दूसरों को खुश करने में है। दिन गुजरते गए और जिंदगी अपनी मामूल की रफ्तार से चलने लगी। अली अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। वो रोजाना नमाज पढ़ता, अपने वालिदैन की मदद करता और अपने दोस्तों के साथ अच्छे काम करने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल में उसके उस्ताद ने सब बच्चों से पूछा, तुम लोगों ने रमजान से क्या सीखा? कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने सब्र सीखा, कुछ ने कहा कि उन्होंने इबादत सीखी। जब अली की बारी आई तो वो खड़ा हुआ और बोला, सर, मैंने सीखा कि रमजान हमें अच्छा इंसान बनने का मौका देता है। हमें सिर्फ एक महीने नहीं बल्कि हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत खूब अली, यही रमजान का असल पैगाम है। इस दिन के बाद अली ने एक नया अहद किया। उसने फैसला किया कि वो हर जुमा को किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करेगा। कभी वो पानी की बोतल देता, कभी खाना और कभी सिर्फ एक मुस्कुराहट। महीने गुजरते गए और फिर एक दिन चांद नजर आया। रमजान दोबारा आने वाला था। जब अली ने चांद को देखा तो उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई। अब वो जान चुका था कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक रोशनी है जो इंसान के दिल में हमेशा रहती है। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से दुआ की, आ अल्लाह, मुझे हमेशा अच्छा इंसान बनाए रखना। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक बार फिर इस बाबरकत महीने के इस्तकबाल के लिए तैयार हो रहा हो। और इस बार अली सिर्फ रमजान का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद एक रोशनी बन चुका था जो दूसरों के दिलों को रोशन करने वाली थी। चांद की हल्की सी रोशनी आसमान पर फैल रही थी और शहर एक बार फिर रमजान के इस्तकबाल के लिए तैयार हो रहा था। मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। पिछले साल अली सिर्फ रमजान का इंतजार करता था, लेकिन इस साल वो रमजान के मकसद को समझ चुका था। अब वो सिर्फ इबादत करने वाला बच्चा नहीं रहा था, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनने लगा था। रमजान का पहला दिन आया तो अली पहले से भी ज्यादा जोश के साथ सहरी के लिए उठा। उसने वजू किया, अपने वालिद के साथ नमाज पढ़ी और फिर खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान को देखने लगा। ठंडी हवा इसके चेहरे से टकरा रही थी और इसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। इस दिन स्कूल में इसके दोस्त अहमद ने इससे कहा, अली, तुम हमेशा दूसरों की मदद क्यों करते हो? क्या तुम्हें कभी थकन नहीं होती? अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अहमद, जब तुम किसी को खुश करते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल को खुशी से भर देता है। यह खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती। अहमद ने यह बात गौर से सुनी
और उसके दिल में भी दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा हुआ। कुछ दिन बाद अली ने देखा कि उनके मोहल्ले में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अकेला था। वो अक्सर अपने घर के बाहर खामोश बैठा रहता था। अली को महसूस हुआ कि शायद इसे किसी की जरूरत है। एक दिन अली उसके पास गया और अदब से बोला, अस्सलाम अलैकुम चचा, आप कैसे हैं? बूढ़े आदमी ने हैरत से अली की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? अली ने कहा, मैं ठीक हूं चचा, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूं? बूढ़े आदमी की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, बेटा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस किसी के बात करने की जरूरत थी। इस दिन अली ने इसके साथ काफी देर बात की। उसने महसूस किया कि कभी कभी किसी को सिर्फ वक्त देना भी एक बहुत बड़ा नेक काम होता है। आहिस्ता आहिस्ता अली के दोस्त भी इसके साथ शामिल होने लगे। वो सब मिलकर मोहल्ले की सफाई करते, जरूरतमंदों की मदद करते और मस्जिद में पानी रखते। लोग उन बच्चों को देखकर खुश होते और उनके लिए दुआएं करते। एक रात तरावी के बाद इमाम साहिब ने ऐलान किया, मैंने इस मोहल्ले के बच्चों को देखा है, खास तौर पर अली को, जो दूसरों की मदद करता है। ये बच्चे हम सब के लिए एक मिसाल हैं। अली ने यह सुना तो वो शर्मा गया, मगर उसके दिल में खुशी भी थी। इसे एहसास हुआ कि अल्लाह इसके छोटे छोटे कामों को भी देख रहा है। रमजान के आखिरी अशरे में अली ने पहले से ज्यादा इबादत की। वो रात को उठकर दुआ करता और अल्लाह से यही मांगता कि वो हमेशा अच्छा इंसान बन सके। फिर एक रात जब वो दुआ कर रहा था, इसे अपने दिल में एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। ये रोशनी आंखों से नजर नहीं आ रही थी, मगर दिल में वाज़े महसूस हो रही थी। इसे लगा जैसे अल्लाह इसके करीब है और उसकी दुआएं सुन रहा है। रमजान खत्म हुआ, मगर इस बार अली को उदासी नहीं हुई, क्योंकि अब वो जान चुका था कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो इंसान को बेहतर बनाता है। साल गुजरते गए और अली बड़ा होता गया, मगर उसके दिल की वो रोशनी कभी कम ना हुई। लोग उसे एक अच्छे और मेहरबान इंसान के तौर पर जानने लगे। और एक दिन जब अली खुद एक उस्ताद बना, तो उसने अपने शागिर्दों से वही बात कही जो उसके वालिद ने इसे कही थी। रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल को रोशन करने का नाम है। इसके शागिर्द खामोशी से इसकी बात सुन रहे थे और उनके दिलों में भी एक नई रोशनी पैदा हो रही थी। और इस तरह वो रोशनी जो कभी एक छोटे से बच्चे के दिल में जली थी, अब सैकड़ों दिलों को रोशन करने लगी थी।